Hello everyone, welcome to Apti Place Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial would be discussed in this session. So let's get started with the topic first. Today is 26th of August. The first topic is Center raise fair price for sugarcane. Second, delta sublinkage, that is AY.12 are found in India. Third, cabinet clear NMP linked FDI proposal. The second last is Afghan can enter India now only on e-visas. Government has cancelled all the previous visa. And the last is a flawed recipes. So this is an editorial from Indian Express. Apart from all the discussion at the end of this video, there would be some MCQ based questions. और ये जो questions होंगे ये based होंगे current affairs पे, that will help you in the upcoming prelims examination. So do check it out at the end of this video and answer the questions. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Place Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. So the first news of the day, at Center raises fair price for sugarcane. This is something which was long pending, and a protest in Uttar Pradesh, eastern Uttar Pradesh mostly, and in Punjab were already there. So this is something which is important for your general studies paper 2, government policies and intervention for the development of various sectors. Now let's understand what actually government has improved, talking about the prices, और उसके क्या-क्या effects होंगे farmers पे. So सेंटर ने डिसाइड किया है, they would be hiking the minimum price जो कि मिल्स में वो पे कर पाएंगे. They have to pay to the sugarcane growers, and this is also called as fair and remunerative prices. FRP होती है, बहुत सारे क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट MSP देती है, बट इफ यू टॉक अबाउट शुगर कैन देयर इज अ FRP स्टेट्स अलग से रेगुलेट करती है, उनके अलग डिफरेंट प्राइस होती है FRP की, और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से अपनी FRP देती है, राइट. आई थिंक आपने ये दोनों बेसिक चीज इकोनॉमिक्स में पढ़ी होंगी. नाउ मूविंग है, गवर्नमेंट ने कहा है दे वुड बी इंक्रीजिंग दिस टू 5 रुपीज, राइट. पहले जो प्राइजेस थी पर क्विंटल गवर्नमेंट उसको बढ़ा करके 290 कर रही है. Previously क्या prices थी, that was 285 per quintal. This was for 2020-2021, but for October 7 September 2021-2022 के लिए गवर्नमेंट ने इसको 290 किया है. So there's an increase of 5 rupees per quintal, right? ये decision ली गई है regarding the increase of FRP of the sugar was taken by the Cabinet Committee on Economic Affairs. No, this is the Apex committee which takes some important decision when it's come to the economic reform or something which is related to the inclusive growth of the country. Now here's a graph that will help you understand कि क्या जो FRP थी sugar cane की, basically FRP fair and remunerative prices. You can see the year wise data. This is it is gradually increases from 2018. You can see the 19, 20, and this is for 2021. डिसीजन ली गई है, इसमें बहुत सारे चीज़ों को बेनिफिट होगी. दैट डिसीजन विल बेनिफिट 5 करोड़ सुगर केन फार्मर्स एंड their dependents. Basically, if any farmer which is working and which is he is deploying something, the family is also the stake. So 5 lakh workers employed in the sugar mill are also related industry is going to benefit from this decision. So this was the highest ever FRP that is given by the government. This is official confirmation coming from the minister himself. And center said that the hike in the price is by 38% since 2010. जब अगर 13-14 की बात करें तो यहाँ पे पहले जो प्राइजेस थी वो 210 थी, और अब जो इंक्रीज देखी गई है 290 के आसपास. दिस इज ऑलमोस्ट 38% इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस प्राइजेस दैट वर देयर इन द 2018-19. 290 की बात करें, सो दिस इज फॉर 2021 एंड 2022. सो दीज डेटा, सम माइन्यूट डेटा इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. Now major sugarcane producers states की अगर बात करें, they have been protesting. अगर खास करके ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें, the farmer were protesting about not price being hard for the FRP, and they were demanded almost 315 quintal. But let's see, government has not augmented this much. And over the last week, Punjab के जो farmers हैं, they also took the streets and they have demanded the state price to be negotiated by 50 rupees and a hike up to 360 per quintal. अगर आप ये प्राइस देखते हो, so again the price is very low. Government has fixed to 290, but जो डिमांड थी यूपी में 315 की थी और पंजाब में 360 की थी. So not very marginal increase, but again something which would help. कम से ज़्यादा तो कहीं बेहतर है.
ना डेल्टा सब लिंकेजेस AY.12 और AY12 जो आप बोलना चाहें was found in India. So this is important for general studies paper 2 issues related to development and management of health. So this is a new variant and a concern for government of India as well as for the expert. इंडिया की सार्क कोव जीनोम टीम जो है जिसको इंसाकॉक भी कहते हैं जो कॉस्टोरियम है उन्होंने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में ये कहा कि कुछ केसेस जो हैं नेवल कोरोना वायरस के दिस इज अ डेल्टा वेरिएंट दे वर मोस्टली प्रेवलेंट इन इंडिया और ये जो वेरिएंट है दे वर मोस्टली फाउंड इन द इजराइल राइट. तो इजराइल के साथ ये एसोसिएटेड है सब लिंकेजेस हर एक कंट्री की अपनी लिंकेजेस अलग म्यूटेशंस पाई गई है बट इफ यू टॉक अबाउट प्रिसाइजली अबाउट AY.12 दिस वाज मोस्टली फाउंड इन इजराइल एंड जस्ट टू टेल यू इजराइल एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने अपने मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पॉपुलेशन को 60% प्लस को उस समय वैक्सीनेट कर दिया था एंड दीज वेर द फर्स्ट कंट्री दैट हैज नो वैक्सीनेटेड सिंगल डोजेस पूरी कंट्री को. So they have a very higher pace of vaccination, but the fact is that still the linkages, the sub-linkages and mutation is arising there also, right? So this is a point of concern. That is the reason government is concerned that अभी जो festive season है उसको कैसे control करना है ताकि किसी भी तरह से जो third wave की possibilities हैं वो ना हो पाए इंडिया में, right? So we also have to contribute on that part and we need also to maintain the COVID protocol so that we can prevent this disease from taking a toll. Now सब डेल्टा लिंकेजेस की अगर बात करें डेल्टा वेरिएंट है ये दिस इज अ डेल्टा वेरिएंट ऑफ B.1.617.2 और इसकी इसी लिंकेजेस से इसको डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा गया एंड इट हैज बीन कैरेक्टराइज्ड एज अ म्यूटेंट इन डिफरेंट वेज. वन ऑफ दीज सब लिंकेजेस इज कॉल्ड AY12 और इसकी जो कैरेक्टर है दैट इज डेल्टा म्यूटेशन एक्सपेक्ट 1. सो उसी की वेरिएंट है उसी के लिंकेजेस है सब लिंकेजेस है एंड इवन व्हेन म्यूटेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग उसकी जो लिथैलिटी है जो खास करके उसकी जो इफेक्ट है वो और ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाती है राइट. सो पॉसिबल क्वेश्चंस कि किस तरह से म्यूटेशंस काम करती हैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस में आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. Now, if you see the case with variant of concern that is detected in India, कुछ चार इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स की अगर बात करें there is more than 4 it is actually 6. So बात करें अल्फा की this was the number of the cases that were reported in India. Then we have beta, we have gamma, we have B.1617 डेल्टा वेरिएंट एंड कापा वेरिएंट. सो इतने केसेस रिपोर्ट किए गए हैं अलग अलग म्यूटेंट वेरिएंट्स. Now some concerns जिस तरह से केसेस इजराइल में बढ़े हैं because Israel is a country where 60% of its adult is fully vaccinated. पूरे country को तो उन्होंने vaccinate कर दिया है but if you talk about adult vaccination that is 60% fully vaccinations, right? India में अभी भी ये percentage करीबन 13% है where the people are fully vaccinated. So this is very significant for a country which has achieved substantial progress but still some linkages and mutation has been seen there, right? Now moving ahead, a large number of cases in Israel has been linked to AY.12 in India and several micro linkages of some of them is also related to AY.12 or 12. Now इनको का जो है इंडिया में जो एक कॉस्टोरियम है उन्होंने कहा है कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द कोरोना वायरस सैंपल हैज़ बीन सीक्वेंस्ड और उसकी जीनोमिक स्ट्रक्चर को अगर देखें तो 50,000 में इस तरह के लिंकेजेस देखे गए हैं अलग अलग तरह के लिंकेजेस एंड अबाउट 60% ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ इंटरनेशनल वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो कि WHO ने दिया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO नेम करती है. सो यहाँ पे इंडियन के सैंपल में जितने भी टोटल सैंपल पाए गए उसमें 60% आउट ऑफ दिस 50,000 60% ऑफ द वेरिएंट वेर म्यूटेटेड बाय द वेरिएंट ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. नाउ थ्रू द ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री की अगर बात करें जो डेली केसेस है इंडिया में दैट इज ऑल्सो गेटिंग डेटोरेटेड. कुछ केसेस अभी बहुत ज़्यादा हाइक नहीं है बट ओनली केरला इज स्टेट जहाँ पे वेडनेसडे तक 31,000 केसेस रिपोर्ट किए राइट. ओवरऑल अगर बात करें दिस ट्रेजेक्टरी इज गेटिंग डाउन बट देयर इज अ 2 main factor that we have to control. Festive season till basically November and December is something which is very important. If you pass this year successfully, we can say yes that we have suppressed corona. We have not completely vanished the corona, but somewhere we have controlled it. Right? Now the other news, cabinet clear NMP linked FDI proposal. This is important for your general studies paper 2. Government policies and intervention for the development of various sectors. बात करें अगर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की
इन्होंने डिसाइड किया कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स हैं दैट वुड बी कमिंग अप टू 15,000 करोड़, और इसको एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग एक कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट करेगी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट सेक्टर्स, राइट। क्या क्या एडवांटेजेस होंगे इस तरह के कोलैबोरेशन की? तो गवर्नमेंट साइड जो इन्वेस्टमेंट होगी दैट वुड प्रूव टू बी अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू द रीसेंट अनाउंसमेंट, जो कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली, मैंने आपको कल बताया, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन किया, जहाँ पे फॉर 4 years they would be giving the stake of government to private player to make a profit and share with the government. So this is in relations to the Anchorage infrastructure and investment holding, and this would also include the investment leasing out state-owned infrastructure assets, जहाँ पे कुछ important sectors like road, railways, airports, sports stadiums, power transmission line, gas pipeline, or private operators would be there. Now, this is an infograph that talks about how the 4-year infrastructure plan would be monetized for around 6 lakh crore rupees. So this is not permanent. This is for 4 year. Keep in mind, and it comprises a timeline of 4 year, that is 2022 to 2025. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं उन पे किए हैं. There is no greenfield project. Just keep in mind, in statement it can be asked, कोई भी greenfield project इसमें नहीं है. Only and only brownfield project, right? 15 railway stadium, 25 airports, 160 coal mines project to be put for asset monetizations, right? Or you can say selling of some stake, not actually selling, it is more of asset monetizations. Now this is a graph, this is basically a chart that will help you understand कि किस सेक्टर में कितने प्राइजेस दिए गए हैं 4 years के लिए. मैंने आपको पहले डिस्कशंस में भी ये अमाउंट बताया. टॉप 3 सेक्टर्स की अगर आप बात करेंगे, फर्स्ट इंक्लूड रोड, सेकंड इज रेलवे, एंड थर्ड इज पावर ट्रांसमिशंस. You can accordingly read some other sectors, or you can take the screenshot of it. And the total corpus here is 6 lakh crore rupees. Now the other news, Afghan can enter India now only on e-visas. The central government has taken a decision. This is important for General Studies paper 2, India and its neighborhood relations. सो बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसे बहुत सारे पॉपुलेशंस हैं इंडिया में, अफगानिस्तान में जो रहते हैं, उनके जो प्रीवियसली जो उनको वीज़ा इशू किया है वो इनवैलिडेट की जाती है और कैंसिल की जाती है, बिकॉज बेसिकली 2000 ऐसे इश्यूज वीज़ाज थे जो कि तालिबान के एडवांसमेंट से पहले इश्यूज किए गए थे, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट फाइंडिंग दैट वीज़ाज, क्योंकि अब वो तालिबान के कंट्रोल में है, दे कैन मिस यूज इट ऑल्सो, राइट. So the Union government has told that Afghan must enter India now only on a special e-visa applied online. Government of India ने एक वेबसाइट, डेडिकेटेड वेबसाइट बनाई है, इंडिया वीज़ा ऑनलाइन. वहाँ पे जो इमरजेंसी वीज़ाज है वो अप्लाई किए जा सकते हैं अफगान नेशनल्स के लिए या वैसे लोग जो अफगानिस्तान में, राइट. सो दिस इज द ओनली वे आउट दैट दे कैन एंटर इनटू इंडिया एंड दे हैव अ वैलिडिटी विद देयर वीज़ाज. रीजन बिहाइंड सच मूव, गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो अनाउंसमेंट ली गई है, because officials said that the government was concerned that passport deposited by Afghan nationals for the visa were being stored in the Indian embassy. बहुत सारे ऐसे वीज़ाज हैं जो काबुल में इंडिया की एम्बेसी वहाँ पे स्टोर थी. Now basically the Afghanistan complete Kabul is there in the hand of Taliban, so they want कि किसी भी तरह से इस वीज़ाज की मिसयूज़ ना हो, उसके लिए जितने भी वीज़ाज 1 महीने पहले इश्यूज़ किए गए थे वो कैंसिल किए जाते हैं. And as a result, Ministry of Home Affairs decided to cancel them. The new procedure, that is e-emergency X miscellaneous visas, would now be applicable for Afghanistan people, and they can finally apply it. And only 20% of them are closely associated with Indian to be allowed in traveling the evacuating of the flights. Right? So right decision at right time. Definitely, we do not know how the visas can be misused, which is there in the Indian embassy. Physical buildings तो उठा के हम ला नहीं सकते वहाँ से, but this was some of the decision that was taken by the Ministry of Home Affairs. Now this is a news and editorial, a flawed recipes, right? This talks about the fortifications of rice. We'll see what are the important issues that has to be discussed. This is important for General Studies paper 2, welfare schemes for the vulnerable section of the population by the center and the states. So there are 6 important subheads which I'll be discussing with you. First is what is fortification of rice. Anemia prevalence in India. Does iron deficiency cause anemia? We have to understand this.
आइडिया फॉर जो राइस फोर्टिफिकेशंस की बात की गई है उसके बारे में समझेंगे, साइड इफेक्ट्स ऑफ आयरन ओवरडोज एंड वे फॉरवर्ड। सो थीम की अगर बात करें, इस पूरे एडिटोरियल में बात की गई है राइस फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली कहा था, और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो लेट अंडरस्टैंड इन डिटेल, दिस कैन बी अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द मेंस पेपर। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी रीसेंट इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कहा था कि देयर वुड बी अ मैंडेटरी राइस फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम, और ये जो राइस फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम है ये पायलट बेसिस पे हर डिस्ट्रिक्ट पे इम्प्लीमेंट की जाएगी, चाहे जितनी भी लॉजिस्टिक कॉस्ट हो फोर्टिफिकेशंस को लेकर के वो सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करेगी। एंड द प्रोग्राम इज टू इंश्योर कि इंडिया को एनीमिक फ्री किया जाए, एनीमिया फ्री किया जाए, राइट। सो दिस टेक अ फॉर्म ऑफ एडिंग मोर आयरन टू डाइट। गवर्नमेंट ने कहा है कि आयरन डाइट को ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली जो रूरल पीपल्स हैं या फिर वैसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके डाइट्स में देने की ज़रूरत है, और एक कंपलसरी राइस फोर्टिफिकेशन होनी चाहिए अंडर दिस प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट के ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम है लाइक ICDS, PDS, मिड डे मील स्कीम्स में, इसमें इसको लिंक किया जाएगा ताकि जो बच्चे हैं या फिर जो अडल्ट हैं उनको बेनिफिट की जाए। बट द प्रॉब्लम इज दैट राइस फोर्टिफिकेशन इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। बॉडी में कंजप्शंस भी होनी चाहिए उस आयरन की। फॉर एब्जॉर्प्शन देयर आर अदर लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट इज रिक्वायर्ड, ओनली गिविंग आयरन सप्लीमेंट विल नॉट वर्क। ये इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई है। सो व्हाट इज राइस फोर्टिफिकेशन? अगर बात करें राइस फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन मीन्स किसी भी फूड की न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाना, राइट। सो व्हाट इज डन है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है राइस में उसको बढ़ाई जाती है यूजिंग द स्प्रेइंग ऑफ द सरफेस, या फिर कुछ अलग विटामिन और मिनरल्स को ऐड की जाती है बाय अ प्रोटेक्टिव कोटिंग। सो राइस कैनल कैन बी फोर्टिफाइड विद राइस माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड और अदर बी कॉम्प्लेक्सेस, इवन विटामिन A एंड जिंक आर बीइंग एडेड, राइट। सो दिस इज द राइस फोर्टिफिकेशन। आपसे अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाएं तो यू कैन आंसर फ्रॉम हियर। नाउ एनीमिया प्रेवलेंस इन इंडिया, कितनी प्रेवलेंस है इंडिया में अगर एनीमिया की बात करें? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेदर एनीमिया प्रेवलेंस इन इंडिया इज इन्फ्लेटेड, कितनी बढ़ रही है, क्या रेशियो है? सो एनीमिया इज डायग्नोस्ड ऑन द बेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल, आपके ब्लड में कितनी हीमोग्लोबिन के लेवल है उसके अकॉर्डिंगली क्या आयरन की डिजॉल्वेंट है, देन ओनली इट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन और कैलकुलेशंस। सो लैंसेट की रीसेंट रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि लोअर हीमोग्लोबिन कट ऑफ टू डायग्नोस एनीमिया इन इंडियन चिल्ड्रन। तो इस तरह की अगर मेजर को मेथडोलॉजी को यूज की जाती है, सो इट विल एक्चुअली रिड्यूस एनीमिया बर्डन बाय 2/3। विल दिस बी द राइट मेथडोलॉजी दैट द एक्सपर्ट हैज टू डिसाइड। नाउ आयरन डिफिशियंसी की अगर बात करें विच काउज एनीमिया, तो क्वेश्चन यहाँ पे कि क्या आयरन डिफिशियंसी इज अ प्राइमरी काउज इन इंडिया, क्या क्या ऐसे कारण हैं बेसिकली कि आयरन ही एक सबसे बड़ी कारण है एनीमिया को प्रमोट करने के लिए। बट रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर उन्होंने अपने सर्वे में कहा है Indian children show iron deficiency that was related to less than half of the anemic cases, right? And many other nutrients which is not adequate like protein intake की बात करें, कुछ और diverse nutrients जो हैं वो इंडियन डाइट में नहीं थी। दैट वर द मेजर काउजेस, नॉट ओनली आयरन। यहाँ पे जो सबसे बड़ी आयरनी है कि ओनली आयरन इज नॉट द रीजन फॉर एनीमिया इन इंडिया, ये मिनिस्ट्री ने खुद कहा है। बहुत सारे और ऐसे फैक्टर्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। नाउ आइडिया फॉर फोर्टिफिकेशंस की अगर बात करें, सो हियर इट कम्स द प्रेमाइस दैट द नॉर्मल इंडियन डाइट कैन नॉट बी प्रॉमिसली मीट द आयरन रिक्वायरमेंट, बिकॉज नो जो रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफिल करने की जरूरत है वो डाइट से, इंडियन डाइट से इज नॉट गेटिंग सफिशिएंट आयरन, राइट। सो लेटेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने कहा है कि 30 to 40% उन्होंने अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको उसको कम किया है, लोअर डाउन किया है। एंड दीज गैप कैन ऑल्सो बी मच लोअर बिकॉज इट इज़ बीइंग सेड कि जो रिक्वायरमेंट है आयरन यूटिलाइजेशंस की, उसके साथ साथ जो एब्जॉर्प्शंस है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेनी अदर न्यूट्रिएंट्स आर इन्वॉल्व इन प्रिवेंटिंग द एनीमिया एंड दिस इज द नॉन डाइटिंग फैक्टर इंक्लूड द इन्वायरमेंट ऑल्सो। सिर्फ डाइट से नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हम आयरन की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। साइड इफेक्ट क्या होंगे आयरन के ओवरडोज के? इफ यू टॉक अबाउट ओवरडोज ऑफ दिस, so it is often said that fortification is safe, it delivers tiny amount of iron and cause harmful side effect, right? और आयरन इनटेक की अगर बात करें 40 मिलीग्राम्स पर डे होनी चाहिए, इससे ज़्यादा अगर होती है तो देयर वुड बी अ रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, राइट। किसी भी अगर आप
विटामिन को ज़्यादा लेते हैं, जिसको हाइपर विटामिनोडोसिया कहते हैं, उस वजह से टॉक्सिसिटी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. नाउ द अनएब्जॉर्ब्ड राइस वुड रिमेन weak and havoc the beneficial bacteria in the larger intestine. Now, iron causes oxidative stress. बहुत सारे जो ऑक्सीडेशन होती है बॉडी में, ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस होती हैं, उसकी वजह से वो स्ट्रेस भी क्रिएट होती है. मोर सीरियस इम्प्लीकेशंस टू द डायबिटिक्स और कैंसर रिस्क के पेशेंट्स, क्योंकि जो ऑक्सीडेशंस का प्रोसेस है उसमें कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशंस काफ़ी ज़्यादा होती है. आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस, राइट. सो कीटोन बॉडीज इज देयर विच इज बीइंग फॉर्म्ड and that led to the more serious implications to the diabetic patients as well as to the cancer patients, right? So men would be at the higher risk if this overdose took place. Now way forward क्या है, diversifications की अगर बात करें, improvement in the environment is key to addressing the problem, and layering fortification of over existing supplement will not work. Because I've told you बहुत सारे और भी factors हैं, बहुत सारे और भी vitamins, minerals हैं that have to taken into consideration. And we need to rethink, reduce the reductionist strategy, जहाँ पे फूड फोर्टिफिकेशन से ज़्यादा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट. दिस इज़ फॉर द ऑल एज ग्रुप, चाहे वो बच्चे हों, प्रेग्नेंट वुमेन हो, लैक्टेटिंग मदर्स हों, उन सभी के लिए ये एक थंब रूल होगी जो गवर्नमेंट को फॉलो करनी चाहिए. Now coming to the MCQ questions of the day, before I proceed, just to tell you the answer of yesterday questions. For the first question, the correct option is A. For the second question, the correct option is C. Now consider the following statement about Financial Action Task Force. The FATF is the intergovernmental body, और जो objective है इसकी, set standard to promote effective implementation of legal, regulatory, operational measures in combating the money laundering and terror financing. So this is something which is very important questions. Do practice and write the correct answer in the comment section down below. Second question of the day, recently the Union Cabinet has signed a comprehensive agreement, partnership किस country के बीच में, that is India Mauritius, India Sri Lanka, India Japan और India Maldives. So this is for comprehensive economic cooperation on partnership agreement. So if you know the correct answer, do check it out, do write the answer in the comment section. If you don't know, you can make an intelligence guessing based on the current affairs that you have read for this point of time. So do write your answer, mark your answer in the comment section down below. If you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.